अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। ठीक है सब? के कोई मैसेज वगैरह अगर करना हो तो यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक अप, या अगर माइक नहीं सही चल रहा तो यू कैन लीव अ मैसेज, आई कैन व्यू इट। अच्छा जी, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो वेल सिंस हमारी इन पर्सन क्लास नहीं हुई तो मैं पेपर डिस्कस नहीं करने वाली, but I would have discussed the exam. But while we're waiting for this to join, so Sarah, like I guess I can take your opinions on के exam कैसा था? Like were you able to complete it on time, या uh, attempt करने में कोई issues हुए? You can write it down or you can unmute and just speak up. It's fine. Either way. Oh, no opinions? I feel like कुछ तो बोलना चाहिए. Okay, why do you think it was lengthy? Because like बहुत सारी चीज़ें तो मना कर दी थी ना बनाने के लिए. So like we said कि getter setters नहीं बनाने, and like बहुत सारी चीज़ें मना कर दी थी at the very start of the exam. Even then you think it was lengthy? I don't think I have the question paper on this computer, तो discuss नहीं कर सकती मैं. email पर भी नहीं है. So okay. अच्छा, पर्सनली आई फेल लाइक के क्वेश्चन इस तरह से बनाया था कि यू कैन लाइक एक स्पेसिफिक फ्लो चल रहा था. इट वाजंट लाइक कि यू हैव टू जंप अराउंड लाइक फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास. लाइक एक क्लास एक फंक्शन एंड देन नेक्स्ट फंक्शन अगर उस फंक्शन को यूज़ कर रहा है तो वो उसको इस तरह से स्ट्रक्चर हम लोगों ने किया था. तो कोशिश ये थी कि यू डोंट हैव टू जंप अराउंड द क्लासेस अ लॉट. But let's see कि how's your performance in the exam, फिर उसके लिहाज से हम next exam structure करेंगे. Let's see how that goes. But for now, actually, I'm checking the exams for my AI students. तो आप लोगों के exams थोड़ी देर से check होंगे after I'm done with AI. तो let's see कब finalize होते हैं आप लोगों के. And that's enough for like exam stuff. But as usual, like अगर कोई मुझे feedback आप देना है आप लोगों को तो like feel free to do that. So I'm also recording the session for students who might not be able to make it. So I'll be uploading it and you guys can have a look on there on YouTube. मैं upload कर दूँगी. So for today, what we're gonna be doing is कि I did make a little Word file to discuss whatever I have to discuss today. So let me just, how do I, okay, let me just zoom in a little bit. तो हम start करते हैं. Okay, so actually में हमें जो है ना start करना है from inheritance, but in C++ हम direct inheritance पर चले जाते हैं. But for Java I feel like थोड़ा सा concept देना ज़रूरी है interfaces का.
So before we start and before you read जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, can somebody give me an idea कि what do you think an interface is? Like अगर मैं किसी इंटरफेस की बात कर रही होती हूँ तो what exactly is an interface? कोई सजेशन, कोई आइडियाज जो आप लोगों के जहन में आते हैं जब you hear the word interface? You can type it in chat or speak up. Either is fine. Okay, yes, that's what an actual interface is. But I was wondering, के, do you like, what do you think of like अगर real life में आप किस चीज़ को interface बोलोगे? Yeah, a medium through which interactions take place. Yeah, that makes a lot more sense, right? So, for example, a GUI comes to mind. Yep. So think of your CLI. CLI क्या होता है? Command line interface होता है. ठीक है. अब इंटरफेस उस इंटरफेस के थ्रू आप क्या कर रहे होते हो? लाइक इंटरेक्ट कर रहे होते हो किसी चीज़ के साथ. सिमिलरली अगर हम लेट्स से एटीएम पर जाते हैं तो उसके अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस शो हो रहे होते हैं, राइट? तो दैट इज़ ऑल्सो एन इंटरफेस थ्रू विच यू आर इंटरेक्टिंग विद द मशीन, राइट? कि मुझे कार्ड डालना है, मुझे अमाउंट सेलेक्ट करनी है, सॉरी मुझे पिन डालना है, देन मुझे अमाउंट सेलेक्ट करनी है एंड सो ऑन. तो वो सारे का सारा एक इंटरफेस के थ्रू आप इनपुट आउटपुट कर रहे हो. So different companies, sorry, in this situation would be banks. Different banks के पास different ATMs होते हैं, different ATM के versions होते हैं. अब हर एक चीज़ like लेकिन काम technically same ही कर रही है. So even though एक ATM different तरीके का दिख रहा हो, different तरीके से input या output दे रहा हो, but it's gonna be doing the same thing. तो कुछ functionality जो है, it's the same throughout all of the ATMs. तो वो फंक्शनैलिटी जब हम प्रोग्राम के सेंस में बना रहे होंगे तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. तो अब इंटरफेस है क्या चीज़? लेट्स लेट्स डू दैट लाइक कोड में भी थोड़ा सा करते हैं एंड उसकी बात भी करते हैं ताकि समझ में भी आता जाए. ऑल्सो अगर कोई क्वेश्चन हो बीच में तो यू कैन जस्ट रेज योर हैंड ताकि मुझे दिख जाए कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं, because I cannot see the chart जब मैं दूसरे टैब पर हूँ. So I do have some codes over here जिनको हम बाद में discuss करेंगे, but for now let's do this. Okay, so I'll zoom in a little bit. Okay, so in Java अगर मुझे कोई interface बनाना है तो it's gonna look something like this. So there's a keyword for interface, आप उसको नाम दे दोगे and then किस चीज़ के लिए मुझे interface बनाना है, I need to write the name for that. तो let's say मैं ATM के लिए interface बनाना चाह रही हूँ तो let's say I'll say ATM over here and that's it. ठीक है, basically इतना सा काम करना है. This will make an interface. जिस तरह से हम एक क्लास बनाते हैं उस तरह से हमने एक इंटरफेस बना लिया. बट नाउ अब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है क्लास से इंटरफेस इन अ वे कि इंटरफेस के अंदर हम फंक्शंस की डेफिनेशंस नहीं दे रहे होते. तो लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव टू मेक अ फंक्शन, लेट्स से हम कहते हैं insert debit card, let's say. Okay, so what I've done right now is कि मैंने एक फंक्शन की डेफिनेशन दे दी है एंड उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी है. अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम कहाँ पे दे रहे होंगे? तो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू टॉक अबाउट. तो लाइक इन द एग्जांपल दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट मैंने क्या कहा था कि हर एटीएम की कुछ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज़ हैं जो कि
डिफरेंट एटीएम्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स हमने यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करी है कि डेबिट कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं, बट देयर इज लाइक मल्टीपल फंक्शनैलिटीज राइट। और क्या क्या काम कर सकता है मेरा एटीएम? तो लेट्स से um, I can add, I cannot type, ठीक है। सो लाइक मैं पिन इनपुट कर सकती हूँ, मैं अमाउंट लेट्स से इनपुट कर सकती हूँ, राइट। ठीक है। तो लाइक फॉर नाउ मैंने 3 फंक्शंस बना लिए हैं। तो हर एटीएम इन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर सकता है, ठीक है। सो लेट्स से हमने क्या कहा था कि डिफरेंट मॉडल्स के एटीएम हो सकते हैं या डिफरेंट बैंक्स के डिफरेंट एटीएम्स हो सकते हैं। तो इफ़ आई हैव टू से कि मुझे एक स्पेसिफिक एटीएम बनाना है जो कि लेट्स से यूबीएल वालों का है, ठीक है। अब अच्छा हाँ, सो एक चीज़ कि हमेशा क्लासेस जो हैं वो इम्प्लीमेंट करनी हैं इंटरफेसेस को, ठीक है। Now the keywords that we have to use is के well first is obviously class, मुझे ATM की क्लास बनानी है for UBL बैंक, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इम्प्लीमेंट करवाना है एक इंटरफेस को यूजिंग अ क्लास, तो I'll have to write a specific keyword and that keyword is implements. तो implements is basically just saying कि इस क्लास के अंदर जो इंटरफेस मैंने ऊपर डिफाइन किया है उसके सारे फंक्शंस की डेफिनेशंस होंगी। दैट इज़ व्हाट यू आर टेलिंग बेसिकली यूजिंग दैट सिंटेक्स। तो अभी मैंने क्या कर दिया, एक इंटरफेस बना दिया, उसके पास 3 फंक्शंस हैं, एक क्लास बना दी जो कि उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। ओके, अब क्या करना चाहिए? तो मैंने ये लिख तो दिया है। इस क्लास के पास अपने वेरिएबल्स हो सकते हैं, अपने फंक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। बट दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट टू डू, ओके। बट इट मस्ट इम्प्लीमेंट दीज फंक्शंस जो कि हमने यहाँ पर डिफाइन किए, ठीक है। सो आई नीड टू राइट इम्प्लीमेंटेशंस फॉर दीज, मैंने कॉपी कर लिया फॉर नाउ। देन मुझे इनकी कोई स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन देनी होगी। सो करंटली मैंने एम्प्टी बॉडी रखी हुई है, तो that means this function is doing nothing. None of these are doing anything. But that is how you go about starting के like मुझे करना क्या है. So let's say insert debit card के अंदर you can write something. Let's see if I can. No, I cannot. Can I? No. I was trying to see कि वो डायरेक्टली लिख देगा या नहीं लिखेगा, बट उसने नहीं लिखा। So let's say I can write something like this, card inserted, and say this, ठीक है। और बाकी फंक्शंस भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर नाउ I'll stop right here, ठीक है। आपकी क्वेरीज मैं देख लूँ कि किसी ने कुछ पूछा है या नहीं। कुछ नहीं पूछा, चलें। तो I'll switch back to the page जिसके ऊपर हम थे। अगर किसी को कुछ पूछना है तो they can unmute and ask, okay? And if you have nothing, you can just leave a comment that कुछ नहीं पूछना।
ओके, चलें, you're not even leaving a comment. Okay, चलें, एक बच्चे ने भेज दिया, ज़बरदस्त. I have some other things over here जिनको हम discuss करेंगे, but for now, let's stick to this example जो कि हम कर रहे थे. Let me just write this. ओके, सो मैंने यहाँ पर कुछ फंक्शंस इम्प्लीमेंट कर दिए हैं. तो इफ़ आई रन दिस राइट नाउ, तो अनलेस हमने कोई सिंटैक्स एरर किया है, दिस शुड वर्क, बिकॉज अभी कुछ भी हम लोगों ने करवाया नहीं है मेन के अंदर. सो नाउ लेट्स गो टू मेन एंड लेट्स सी कि मुझे अगर यूटिलाइज़ करना है तो मैं किस तरह से कर रही हूँगी अपनी क्लास को. तो क्लास को यूटिलाइज करना इज़ pretty मच द सेम एज जिस तरह से हम क्लास के वेरिएबल्स बनाते हुए आ रहे हैं. सो माई क्लास नेम वॉज ATM UBL, राइट. तो I'll just write it over here. I'll say कि मुझे ATM UBL का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, एंड उसको हम इनिशियलाइज कर लेते हैं, ठीक है. Okay, and then I can do all of these functionalities जो कि यहाँ पर मैंने implement करी हैं. तो I can say object dot insert debit card कर दो. Let's say 1 2 3 4 5, ठीक है. Object dot input pin कर दो. Let's say 1 2 3 4, and object dot input amount to withdraw कर दो. And let's say हम कहते हैं 10,000 withdraw करवाने हैं. So now we have this specific thing going on यहाँ पर. हमने object बना लिया, functions call कर लिए. So now when I run this, it should say कि ये वाला card insert हुआ है, ये वाला pin input हुआ है, and ये जो भी amount मैंने mention करी है, this is the amount that is to be withdrawn. So let's run that. तो हमारे पास ये आउटपुट शो कर रहा है, राइट. ओके, नाउ ये तो बड़ी सिंपल सी हमारे पास चीज़ हो गई कि हम एक इंटरफेस बनाकर उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करवा रहे होते हैं. तो अगर इसमें कोई क्वेश्चंस नहीं है तो वी कैन लुक एट द अदर एग्जांपल जो कि मैंने अपनी वर्ड फाइल के अंदर डाली हुई है. तो इफ़ यू हैव क्वेश्चंस प्लीज़ आस्क, एंड इफ़ नॉट तो फिर हम थोड़ा सा ड्राई रन करते हैं, ठीक है. राइट, सो इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन का फ़ायदा क्या है. सो व्हाट हैपेंस इज़ कि एक तो चीज़ आपको जब हम इनहेरिटेंस करेंगे तब पता लगेगी, बट बिफोर दैट इंटरफेस बेसिकली क्या है कि हमने क्या कहा कि फंक्शनैलिटी हम बता देते हैं कि लाइक ये फंक्शनैलिटी होनी चाहिए. सो लाइक हमने इसके अंदर क्या कहा था कि इंसर्ट डेबिट कार्ड की फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, पिन की फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, एंड लेट्स से अमाउंट विदड्रॉ करने की फंक्शनैलिटी होनी चाहिए. सो आई टेक द सेकंड वन एज एन एग्जांपल क्योंकि इससे थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा. तो डिफरेंट जो हमारे एटीएम के मॉडल्स होते हैं उसके अंदर you'll सी के कुछ एटीएम्स लाइक टच स्क्रीन होते हैं, कुछ एटीएम्स आपके कीपैड वाले होते हैं, ठीक है. तो अगर कीपैड वाला होता है तो मुझे इनपुट पिन करने के लिए लेट्स से कीपैड प्रेस करके इनपुट करना पड़ता है पिन. लेकिन अगर टच स्क्रीन होता है तो हमें टच स्क्रीन के थ्रू इनपुट देना होता है. तो दोनों फंक्शनैलिटीज़ मेरे पास डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही हैं, बट द कोर थिंग इज़ द सेम कि मुझे पिन इनपुट करना है. नाउ अगर वो लेट्स से मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फॉर नाउ थ्रू कीपैड, ठीक है. एंड एक और मैं एटीएम बना देती हूँ.
सही है. So किसी और बैंक का, let's say HBL का, and let's say they have a touch screen. तो ये बड़ी बेसिक सी चीज़ हमने यहाँ पर कर दी कि um, so हर ATM जो है it's gonna be implementing the PIN functionality, but ये वाला जो है ये कीपैड से implement कर रहा है इस functionality को. And ये मैंने गलत लिख दिया ना, hang on, इसको मैं सही कर दूँ. Okay, and यहाँ पर टच स्क्रीन कर दिया. ठीक है. So both implement the same functionality, but they have their own different take on के किस तरह से मुझे उस functionality को implement करना है. तो like let's say ये functionality exact same तरीके से implement हो रही है, ये भी exact same तरीके से implement हो रही है, but the pin one is being implemented in a separate way. तो now that's the thing कि जब हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं चीज़ों को, so it might be कि दो different classes same functionalities implement कर रही हूँ, but उसकी logic different हो रही है. तो अगर logic different है but functions are the same, तो हम interfaces use करेंगे. सही है. Okay. And I hope that was clear. Okay. Alright, so let's move to the code snippet I wrote and उसको हम discuss कर लेते हैं कि इसका I do have it यहाँ पर run किया हुआ है मैंने, but I'll still discuss with you guys. Okay, so let's move this a little over there. Okay. So we have a little interface over here. Payment method के नाम से है. इसके पास दो functions हैं, एक pay का और एक refund का. तो जो भी अमाउंट भेजनी है उसको कुछ लिख देना है कि पेमेंट हो गई, एंड रिफंड करने की बात आई तो वो भी अलग से हमारे पास है. ठीक है. नाउ आई हैव टू क्लासेस ओवर हियर. एक क्रेडिट कार्ड की क्लास है. सो लेट्स मेक श्योर एवरीवन इज फॉलोइंग. One interface payment method, one class credit card, and credit card की class payment method को implement कर रही है. So like we said before, अगर हम कह रहे हैं कि कोई class किसी interface को implement कर रही है, तो it must implement all of the methods जो कि interface के अंदर present हैं. So like credit card must implement pay and it must implement refund as well. अगर इनमें से कोई एक भी मैं implement नहीं करूँ तो मुझे error देगा. हमने वो try करके नहीं देखा, but we can try it down in a bit. सही है. So so एक implementation हमने pay के लिए यहाँ पर लिख दी कि credit card use करके payment हुई है, and एक हमने refund की लिख दी है. ठीक है. And the next class that I have is a mobile wallet class जो कि again payment method को implement कर रही है. तो it must implement uh, both functions again. Pay को भी implement करेगी, refund को भी implement करेगी. So again functionality के अंदर हमने कुछ खास नहीं किया हुआ. इसके अंदर just ये लिखा हुआ है कि okay using mobile wallet हमने payment कर दी है, and refund अगर किया है तो refunding to mobile wallet हम कर रहे हैं. ठीक है. Next, I have a class जो कि checkout के नाम से है. Now that class is not implementing payment method. ठीक है. But उसके पास एक payment method नाम का variable है. Now this might confuse you a little bit or it might not. तो ज़रा discuss करते हैं कि अब क्या हो रहा है यहाँ पर. ठीक है. So एक payment method नाम का variable है मेथड के नाम से. सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने. एक पेमेंट मेथड क्लास का वेरिएबल है मेथड के नाम से, एंड वो क्या कर रहा है, एक फंक्शन उसके पास है कंप्लीट परचेस का. उसको हम एक अमाउंट पास करें एज एन आर्ग्यूमेंट, एंड वो बेसिकली क्या कर रहा है, पेमेंट मेथड के पे मेथड को कॉल कर रहा है. सो इफ आई गो बैक ओवर हेयर, पेमेंट मेथड का पे मेथड. सही है. नाउ इफ यू नोटिस पेमेंट मेथड के पास तो पे की इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी. तो व्हेन आई से
कि मेथड डॉट पे कॉल करो, इट्स कॉलिंग दिस राइट पेमेंट मेथड की। ये तो इंटरफेस था। सो इंटरफेस के अंदर से मैं पे का फंक्शन कैसे कॉल करवा रही हूँ? थिंक अबाउट इट जस्ट अ लिटिल बिट, फिर हम डिस्कस करते हैं। सो पेमेंट मेथड का एक वेरिएबल बनाया हुआ है एंड उसका मैंने डॉट पे कॉल करवाया हुआ है। This interface and a regular function which calls two functions inside of it. Uh, are you talking about this या कहीं और पर? I'm a little confused about your question. मैम एक क्वेश्चन था। Mm-hmm. ये जो हम सी में जो प्रोटोटाइप्स यूज करते हैं Mm-hmm. वो इनसे सिमिलर हैं या फिर वो डिफरेंट है? नो नो नो, इट इज़ डिफरेंट। सी के अंदर प्रोटोटाइप्स जो हम बनाते हैं वो हम बाद में इम्प्लीमेंट कर देते हैं, दैट इज़ डिफरेंट। जब इंटरफेस के अंदर हम प्रोटोटाइप्स बनाकर छोड़ देते हैं तो दे मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ क्लास ओनली। सही है, तो इंटरफेस के बाहर मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। जब भी मैं कोई क्लास बना रही होंगी आई राइट क्लास समथिंग इम्प्लीमेंट्स माई इंटरफेस। अब उस इंटरफेस के अंदर जो फंक्शंस होंगे मुझे उसकी बॉडी डिफाइन करनी पड़ेगी विद इन द क्लास। तो लाइक जब हमने क्रेडिट कार्ड की क्लास बनाई थी एंड मैंने लिखा था कि क्रेडिट कार्ड इम्प्लीमेंट्स पेमेंट मेथड, तो इट नीड्स टू इम्प्लीमेंट पे एंड इट नीड्स टू इम्प्लीमेंट रिफंड। अगर मैं ये चीज़ यहाँ से हटा दूँ तो फिर जब मैं पे एंड रिफंड अगर मैं वहाँ पर लिखती हूँ तो वो उस क्लास के मेंबर फंक्शंस काउंट होंगे, वो इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन काउंट नहीं होंगे। Let me explain. Let me explain. So let me just go back over here. तो अगर मैं यहाँ से इसको हटा देती हूँ, ठीक है, तो नाउ ये जो ATM UBL है उसके पास ये फंक्शन स्टिल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो व्हेन आई ट्राई टू कॉल दिस इट विल वर्क, मुझे एरर नहीं देगा, ठीक है। इफ आई रन दिस, ठीक है, तो वो मुझे क्या कह रहा है, जो भी मैंने इसके अंदर कोड लिखा हुआ था उसने एज इट इज़ रन कर दिया। बट अगर मैं कह रही हूँ कि वो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है, सो लेट मी जस्ट राइट दिस। एक्चुअली राइट करने की ज़रूरत नहीं है, अंडू कर देती हूँ ना। तो नाउ ये इस क्लास के अपने मेथड्स नहीं है, ये इस इंटरफेस के मेथड्स हैं जो कि इसने इम्प्लीमेंट किए हैं, राइट। तो कोड का आउटपुट तो चेंज नहीं हो रहा होगा, इट्स गोना से द सेम थिंग कि कीपैड से इनपुट किया है, कार्ड इंसर्ट कर दिया है, कैश विड्रॉ इतना करना है, ठीक है। तो आउटपुट के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं पड़ रहा, बट कोड की इनसाइड लॉजिक इज़ नाउ डिफरेंट, कि ओनरशिप का फ़र्क आ जाता है कि इज़ माई फंक्शन लाइक क्लास का फंक्शन या इज़ माई फंक्शन इस इंटरफेस का फंक्शन है। तो अभी जो हमने इम्प्लीमेंटेशन करी है उसके लिहाज से द फंक्शन बिलोंग्स टू द इंटरफेस, बट मेरी क्लास उसको इम्प्लीमेंट कर रही है तो मैं उसको क्लास के वेरिएबल के थ्रू यूटिलाइज कर सकती हूँ। सो ओवर हेयर जो हमने काम किया हुआ है, आई एम कॉलिंग द इंसर्ट डेबिट कार्ड फंक्शन जो कि मेरी क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। सिमिलरली इफ आई जस्ट कॉपी दिस एंड हमने दूसरे वाले को नहीं किया था ना, तो मैं दूसरे वाला भी कर देती हूँ यहाँ पे। दूसरा हमने HPL वाला लिखा था एंड HPL एंड इसको OBJ1 कर देते हैं ताकि हम दोनों को रन करके देख लें, राइट। सो नाउ इफ आई रन दिस, तो मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया, सो यूल सी के फर्स्ट वाला फंक्शन सेम कॉल कर रहा है, बट इन दिस सिचुएशन वो क्या कह रहा है कि थ्रू कीपैड इनपुट हुआ है। इस सिचुएशन में क्या कर रहा है कि थ्रू टच स्क्रीन इनपुट हुआ है। तो फंक्शन के नेम सेम है, ठीक है, दे बोथ बिलोंग्ड टू द इंटरफेस, ठीक है, लेकिन उसकी लॉजिक मैंने
क्लास के अंदर डिफरेंट डिफाइन करी हुई थी। तो HBL वाले के अंदर टच स्क्रीन से हुआ हुआ था, UBL के अंदर कीपैड से हुआ हुआ था। तो that is how we're going to be implementing interfaces differently in different classes. अच्छा, एंड अब मुझे दूसरे बच्चे का भी क्वेश्चन आंसर करना है। uh, but before that आपकी क्वेरी क्लियर हुई या नहीं हुई? यस मैम, हो गई। Are you sure? मैम एक और डाउट भी था कि जो Mm-hmm. मतलब सी में जो प्रोटोटाइप्स हैं उनकी कोई Mm-hmm. डिफरेंट लॉजिक नहीं हो सकती? Prototypes. अच्छा, so C के अंदर like I'll open the compiler for you, don't worry, हम handle कर लेते हैं। ठीक हो गया। So like for example, this is one prototype, ठीक है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन मुझे नीचे जाकर देनी होगी, राइट। नाउ इसकी एक ही दफ़ा इम्प्लीमेंटेशन मैं दे सकती हूँ। अगर मैं दोबारा, सो इफ़ आई रन दिस इज़ फाइन, राइट। अगर मैं इसकी एक और इम्प्लीमेंटेशन देने की कोशिश करूँ तो इट्स नॉट गना अलाउ मी टू डू दैट, ठीक है। तो सेम फंक्शन को मल्टीपल जगह हम सी के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते। तो इट्स ऑलवेज गोना गिव मी एन एरर अगर मैं डिफरेंट लॉजिक्स उसकी देना चाहूँ तो दैट इज़ नॉट अलाउड इन सी। एंड जावा के अंदर भी इट्स नॉट अलाउड, पर इट ओनली वर्क्स क्योंकि इसका स्कोप डिफरेंट है। इसका स्कोप डिफरेंट है because this is in a different class, this is in a different class, तो different classes के अंदर हम same functions बना सकते हैं। तो that is why हम यहाँ पे इन functions को repeat कर सकते हैं between this class and between this class, you can repeat them. Okay, does that make sense? मैं कर देती हूँ। कौन से वाला अपलोड करने की बात कर रहे हैं? This one or the other one? Okay, so actually मैं कर देती हूँ। I think I have Classroom open. Okay, I don't have Classroom open. Okay, I've uploaded it, so you can open it and like try it along with me. Okay. Okay, okay, okay. And going back to the query, this one. Okay. Difference between this and function, which calls two functions inside of it. हमने किसी भी फंक्शन के अंदर दो फंक्शन तो कॉल नहीं किए, सो आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड। अब्दुल रहमान प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, लाइक अगर माइक ओपन करके बोलना चाहें तो आई थिंक दैट वुड मेक इट इजियर। आर यू देयर? ऑल राइट, जबरदस्त, फिर तो ठीक है।
ओके, सो अभी हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करी नहीं है, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो फॉर नाउ हमने क्या किया है, हमने क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाए थे। सो एटीएम यूबीएल का ऑब्जेक्ट बनाया था, एटीएम एचबीएल का ऑब्जेक्ट बनाया था, बट मैंने एटीएम का ऑब्जेक्ट बनाकर नहीं देखा। तो लेट्स लेट्स ट्राई दिस, ठीक है? So if I write something like this, ठीक है, तो what do you think will happen? वो बनाएगा एटीएम का ऑब्जेक्ट या नहीं बनाएगा? You can say yes or no in chat. It's fine to be wrong. Like we're learning here. So you would think कि ओके मैंने हम हमेशा इसी तरह से ऑब्जेक्ट्स बनाते आ रहे हैं, तो when I make when I write this statement तो वो एटीएम का ऑब्जेक्ट बना देगा. But let's run this. ठीक है, I'm getting an error. So yeah, the error says कि ATM is abstract, cannot be instantiated. Okay, so अब ये abstract की बातें हम बाद में करेंगे, but just for now you should know कि हम interface का object directly नहीं बना सकते. So I cannot say new ATM. ठीक है, न्यू एटीएम नहीं कर सकते, तो फिर अब क्या कर सकते हैं हम, लेकिन एक काम कर सकते हैं जो कि हम आगे भी जाकर देखेंगे, इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ पोलिमॉर्फिज्म जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। व्हाट यू कैन डू इज़ कि कोई भी ऐसी क्लास जो कि एटीएम को इम्प्लीमेंट कर रही है, हम उसका रेफरेंस इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। तो लाइक आई कैन से एटीएम यूबीएल या एटीएम एचबीएल, कोई भी चीज़ मैं यहाँ पर डाल सकती हूँ, ठीक है? सो लेट्स से फॉर नाउ मैंने एटीएम यूबीएल रख दिया। लेट्स कमेंट ऑल ऑफ दिस आउट, फिर हम इसको रन करके देखते हैं, ठीक है? Alright, so I've commented this out, and one sec while I copy this. Okay, so again just repeating it for clarity purposes कि directly हम new ATM नहीं लिख सकते, ठीक है? उसका रीज़न हम बाद में समझेंगे कि क्यों। फॉर नाउ जस्ट नो कि हम न्यू एटीएम नहीं कर सकते क्योंकि एटीएम एक इंटरफेस है, इट्स नॉट अ क्लास। सिर्फ क्लास के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, इंटरफेसेस के ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते, ठीक है? तो आई कैन डू दिस क्योंकि न्यू एटीएम यूबीएल क्या करेगा, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा है, दैट इज परफेक्टली फाइन, ठीक है? आई कैन स्टोर दैट रेफरेंस इनटू एन इंटरफेस, ठीक है? सो एटीएम मेरा इंटरफेस था, उसके लिए मैंने एक वेरिएबल बना लिया, उस वेरिएबल के अंदर मैं एटीएम यूबीएल का रेफरेंस डाल सकती हूँ। इस एटीएम के अंदर मैं एटीएम एचबीएल का भी रेफरेंस डाल सकती हूँ इफ़ आई वांट टू। फॉर नाउ मैंने यूबीएल वाला डाल दिया, ठीक है? नाउ व्हेन आई रन दिस, तो वो क्या करेगा, जो यूबीएल के अंदर implementations हैं for insert debit card, input pin and input amount to withdraw, इन तीनों चीज़ों को रन कर देगा। सो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट किसका था, यूबीएल वाले का था। सो इफ़ आई रन दिस I'll get all of the stuff जो कि एटीएम यूबीएल की डिस्क्रिप्शन के अंदर था। सो जो भी फंक्शन डेफिनेशन इसकी थी, मुझे एग्जैक्ट वो आउटपुट दे रहा है। नाउ यहाँ से लाइक आई सेड हम कोई भी डाल सकते हैं जो कि एटीएम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो यूबीएल को भी डाल सकते हैं, एचबीएल को भी डाल सकते हैं। तो व्हेन आई डू समथिंग लाइक दिस, तो वो क्या करेगा, अब एचबीएल वाले के अंदर जो हमने डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई थी फंक्शंस की,
वो उनको रन करेगा. So instead of keypad, this will now say touchscreen. ठीक है. So एटीएम के अंदर जिस भी टाइप का एटीएम है वो उसको इम्प्लीमेंट उस उसको रन करके दे देगा जो भी मैंने डाला होगा उसके लिहाज से. सो दिस इज़ वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग इंटरफेसेस कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग मल्टीपल टाइप्स ऑफ एटीएम. सो लाइक मुझे यूबीएल का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है, मुझे एचबीएल का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है. तो you don't have to write different codes for different objects. What you can do is कि आप एक ही कोड लिखोगे, ATM equals to new, let's say whatever. And ये जो इसके नीचे वाला कोड है ये मुझे बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा. I just have to make some changes over here. इसको हम किसी कंडीशन के अंदर भी डाल सकते हैं. तो something like this. Um, uh, do this, else. ठीक हो गया. सो बेस्ड ऑन दिस स्पेसिफिक कोड व्हाट्स गोना हैपन इज कि अगर अभी मैंने यूएसर इनपुट नहीं लिया पर अगर यूएसर ज़ीरो इनपुट करेगा तो वो एच पी एल का ऑब्जेक्ट बना देगा. अगर यूज़र वन इनपुट करता है या कुछ ज़ीरो के अलावा कुछ और इनपुट करता है तो इट विल मेक अ यू बी एल वाला ऑब्जेक्ट. एंड उसके बाद वाले कोड के अंदर मुझे कुछ चेंजेस नहीं करनी पड़ रही. सो ओवर हेयर मुझे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वन दोनों को यूटिलाइज करना पड़ा था. बट ओवर हेयर आई जस्ट मेक वन रेफरेंस एंड उस रेफरेंस के थ्रू वट एवर आई गेट एच बी एल या यू बी एल आई कैन रन दैट. ठीक है. सो जिसका भी रेफरेंस होगा वो मुझे उसका फंक्शन चलाकर दिखा देगा. इन दिस केस अभी चॉइस इक्वल्स टू ज़ीरो पर वो एच पी एल का बना रहा है ऑब्जेक्ट. इफ आई रन दिस वो मुझे टच स्क्रीन शो करेगा. लेकिन अगर मैं यहाँ पर चॉइस को चेंज करके वन कर देती हूँ तो इट्स गोना शो मी द अदर वन कि कीपैड से अब इनपुट कर रहे हैं. तो दिस हेल्प्स अ लॉट जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे फॉर सेविंग स्पेस एंड योर टाइम कि आपको हर क्लास के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाने पड़ रहे होंगे. एक रेफरेंस उससे वो सारे के सारे काम कर लेगा. So now again, I'll be taking your question. Oh yeah. If time's up, you can go. I'll be uploading this on YouTube. तो वहाँ से you can look at the lectures. But next class में if you have any queries तो हम उनको handle कर लेंगे. ठीक है. चलें. We'll see you at 12 इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़. ओके मैम, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.